Hello students, so we are going to talk about a very important topic today and we are going to use the microbes in treatment of polluted water. ठीक है, so आज के लेक्चर में we are going to talk about STP, that is sewage treatment plant, और ETP, that is effluent treatment plant. So we have sewage treatment plant or the effluent treatment plant. ठीक है, STP या फिर ETP. ठीक है. Now the whole intention here is to use the microbes in filtering or in cleaning or making the polluted water less polluted. ठीक है, the whole intention of this technique is to make the polluted water less polluted. ठीक है. Now the thing is, normally क्या किया जाता है, जो भी वेस्ट है अगर आप उसे वाटर बॉडी में रिलीज कर दो, लेट्स से आप उन्हें लेक्स में रिलीज कर रहे हो या आप उन्हें रिवर्स में रिलीज करो, तो वो क्या करेंगे, दे वुड कॉज पोल्यूशन इन दी वाटर बॉडी. सो टू अवॉइड दोज सर्कमस्टेंसेज, टू अवॉइड दोज कंडीशन, आप क्या करोगे, यू विल पास द वाटर थ्रू द एसटीपी और द ईटीपी एंड देन व्हेन द वाटर इज लेस पोल्यूटेड देन ओनली यू विल पास इट इनटू अ वाटर बॉडी. ठीक है. सो सीवेज जो है that is the municipal waste. तो अपने घर से निकल रहा है, so that waste which is sewage, it contains a lot of solid and liquid waste. काफी सारा solid एंड लिक्विड वेस्ट होता है. ठीक है. तो सीवेज जो है अपने घर से निकल रहा है, दैट एड्स अप एंड फॉर्म्स अ म्युनिसिपल वेस्ट, ओके, व्हिच कंटेन्स अ लॉट ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट. नाउ दिस म्युनिसिपल वेस्ट जो होता है, दैट इज पास थ्रू एसटीपी और ETP and then दो तरीके से आप यूज कर सकते हो. फॉर डोमेस्टिक पर्पस डोमेस्टिक पर्पसेस लाइक गार्डनिंग है, क्लीनिंग हो गया. ठीक है. और इट कैन बी रिलीज इन दी वाटर बॉडी. ठीक है. तो जो सीवेज है, जो म्युनिसिपल वेस्ट है, ओके, इट हैज टू अंडरगो द प्रोसेस ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और द ईटीपी एंड देन इट कैन बी यूज फॉर द डोमेस्टिक पर्पस. घर पे आप अलग अलग चीज़ों के लिए यूज कर सकते हो अपार्ट फ्रॉम ड्रिंकिंग, ओके, एंड और इट कैन बी रिलीज इनटू द वाटर बॉडी. ठीक है. सो जो स्टेप्स यहाँ पे इन्वॉल्व है, देयर आर 3 ट्रीटमेंट गिवन टू द सीवेज. जो एसटीपी है उसमें 3 ट्रीटमेंट दी जाती है. देयर इज primary treatment, then there is secondary treatment and then there is tertiary treatment.
ठीक है, there are 3 steps. Now what is important to be known is कि कौन सी टेक्निक, कौन से ट्रीटमेंट में देयर इज यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि अपन चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्पिंग द ह्यूमंस. सो विच ट्रीटमेंट रिक्वायर्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ठीक है, तो जो फर्स्ट ट्रीटमेंट है जो मैंने लिखी है, प्राइमरी ट्रीटमेंट, दैट इज अ फिजिकल प्रोसेस एंड इट डज नॉट रिक्वायर it's a physical process and does not require microbes. ठीक है. Second is the secondary process. ठीक है, and it's a biological process. क्या है? biological process है, and obviously it requires microorganism. तो मैं लिखूंगा it's a biological process. And it requires microbes. ठीक है, तो आपको याद रखना है सेकेंडरी ट्रीटमेंट वाला जो पार्ट है किसका, एसटीपी का या फिर ईटीपी का, दैट रिक्वायर्स व्हाट, दैट रिक्वायर्स microbes. First process में there is no requirement as it's a physical process. Now talking about the tertiary treatment. So tertiary treatment में requirement है क्या? So tertiary treatment is physiochemical process. That means physical and chemicals are required. So physiochemical process. ठीक है, so this step also does not require microbes. No microbes are required. Only the second step requires microbes. So this is very important. आपको याद रखना पड़ेगा. ठीक है, the first step is physical process, the second step is biological process, and the third step is physiochemical process. ठीक है, the microbes are only required in the second step. ठीक है, now let's make the whole STP. फिर we'll talk about क्या क्या करना है वहां पे. So 3 टैंक है वहां पे. So you can see 3 tanks available. Okay, so there are 3 tanks available here. आप देख सकते हो. ठीक है, so the first tank
that is known as the settling tank or the primary settling tank. So I'll put it here. यहाँ पे लिख देते हैं. This is primary settling tank. ठीक है. This is primary settling tank. Now there's another tank which is a bigger one, that is known as the aeration tank. This is aeration tank. And the third tank, that is known as the secondary settling tank. Okay, good. And plus we have a setup here that helps in mixing up the effluent. Okay, so this is the whole setup. Okay, so now how does it work? So जो पहले आपका सीवेज होगा, तो सीवेज has to go or has to enter the first tank, that is the primary settling tank. That is the primary settling tank. ठीक है. अब यहाँ पे there are two things that are happening. So primary treatment की बात कर रहे हैं अपन. So primary treatment में क्या होगा? So first there is filtration. पहली जो चीज देखने को मिलेगी, that is going to be filtration. किस चीज का filtration? जो floating debris है ना, जो सीवेज के अंदर floating debris है, उनका filtration किया जाएगा. फ्लोटिंग डेब्रीज का फिल्ट्रेशन किया जाएगा. और फिर दूसरा जो स्टेप आएगा इसमें इन्वॉल्व जो है, दैट इज सेडिमेंटेशन. उसमें क्या किया जाएगा सेडिमेंटेशन में? जो सॉइल और पेबल्स है या स्मॉल स्टोन पार्टिकल्स है, वो उनको सेटल किया जाएगा. सो सेडिमेंटेशन किसका किया जाएगा? सॉइल प्लस पेबल्स. ठीक है. ऑल टुगेदर इट इज टर्म्ड एज ग्रिट. इट कैन बी टर्म्ड एज ग्रिट. ठीक है. नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज, जो सीवेज है, उस सीवेज को क्या किया जाएगा? पहले तो उसका चर्निंग एंड शेडिंग किया जाएगा. The sewage यहाँ पे जो एंटर हुआ है undergoes churning and grinding. क्या होगा? churning and grinding या फिर शेडिंग बोलेंगे. ठीक है. शेडिंग होगा और उसके बाद क्या किया जाएगा? ये जो पूरा मिक्सचर है उसे पास किया जाएगा एक स्क्रीन के थ्रू, एक फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन के थ्रू. ठीक है. तो यहां पे मैं लिखूंगा इट इज पास थ्रू अ स्क्रीन और अ फिल्टर. ठीक है. क्या नाम लिखेगा अपन? स्क्रीन. तो जब स्क्रीन से पास किया जाएगा ये सीवेज को आफ्टर चर्निंग एंड शेडिंग, तो जो ऑर्गेनिक है मैटर है वो क्या हो जाएगा? यहां से निकल जाएगा. तो ऑर्गेनिक मैटर इज रिमूव्ड. ओके. फर्स्ट स्टेप लिखेगा अपन रिमूवल ऑफ
organic matter. Let me add large size organic matter. ठीक है, and then it is released into the primary settling tank. तो लास्ट स्टेप में क्या लिखे, released in primary settling tank. in primary settling tank. ठीक है, तो 3 स्टेप है. पहले सीवेज को क्या किया जाएगा, चर्निंग एंड शेडिंग की जाएगी, फिर उसको फिल्टर्स के थ्रू पास किया जाएगा, स्क्रीन्स के थ्रू पास किया जाएगा, और जहां पे ये स्क्रीन्स क्या कर लेगी, जो लार्ज साइज ऑर्गेनिक मैटर है उनको रोक लेगी, उनको ब्लॉक कर देगी. ठीक है, तो वो सब चीज़ें जमा हो जाएगी आगे ही, और फिर जो चीज़ बच जाएगी दैट इज पास्ड इनटू दी और इट इज रिलीज्ड इनटू दी प्राइमरी सेटलिंग टैंक. मतलब यहाँ पे उसे भेज दिया जाएगा. मतलब ये जो प्रोसेस मैं बता रहा हूँ ये टैंक में आने से पहले की. ठीक है, दिस प्रोसेस इज टैंक में जो कंटेंट आएगा उसके पहले की है. ठीक है, तो अब क्या होगा यहाँ पे, जब आप प्राइमरी सेटलिंग टैंक में इस सीवेज को जाने दोगे आफ्टर चर्निंग, शेडिंग एंड आफ्टर स्क्रीनिंग, तो जो बड़े बड़े पार्टिकल्स है वो तो हट चुके, बचेंगे क्या, जो छोटे ऑर्गेनिक पार्टिकल्स है वो बचेंगे. तो आप प्राइमरी सेटलिंग टैंक में कुछ प्रोसेस नहीं करोगे, यू वुड लेट दी सीवेज सेटल. आप उसको सेटल होने दोगे. तो जब आप सेटल होने दोगे तो क्या होगा, जो हैवी पार्टिकल्स है, the heavy particles would start settling at the bottom. वो क्या होने लगेंगे, बॉटम पे सेटल होने लगेंगे the heavy particles. ठीक है, and the rest would be floating on the top. ठीक है, सो जो हैवी पार्टिकल्स है वो टैंक के प्राइमरी सेटलिंग टैंक के बेस पे सेटल हो जाएंगे, और बाकी का जो लिक्विड होगा वो क्या करेगा, फ्लोट करेगा. ठीक है, सो दिस इज नोन एज, जो नीचे सेटल हो गया, दिस इज नोन एज द प्राइमरी स्लज. इसे क्या कहा जाता है, दिस इज टर्म्ड एज प्राइमरी स्लज. और जो ये चीज है विच इज फ्लोटिंग, इट इज नोन एज द प्राइमरी एफ्लुएंट. इट इज नोन एज प्राइमरी एफ्लुएंट. ठीक है, तो जो अपना फर्स्ट टैंक है प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक, उसमें क्या मिला है, प्राइमरी स्लज मिला है एंड प्राइमरी एफ्लुएंट मिला है. तो प्राइमरी स्लज के अंदर क्या चीजें हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर तो फिल्टर आउट हो गया, तो प्राइमरी स्लज में क्या होगा, तो प्राइमरी स्लज वुड कंटेन हैवी सैंड पार्टिकल्स या फिर ग्रिट अवेलेबल होगा वहां पे. ये जो अभी अपन ने लिखा था यहाँ पे ग्रिट, सो देयर वुड बी प्रेजेंस ऑफ ग्रिट. ठीक है, एंड प्राइमरी एफ्लुएंट में क्या होगा, तो प्राइमरी एफ्लुएंट वुड कंटेन फाइन ऑर्गेनिक पार्टिकल्स, और फाइन ऑर्गेनिक मैटर. ठीक है, दो बातें आपको याद रखनी है कि जो प्राइमरी एफ्लुएंट जो फ्लोट कर रहा है ना, उसके अंदर क्या है, फाइन ऑर्गेनिक मैटर है, क्योंकि जो बड़े वाले ऑर्गेनिक पार्टिकल्स थे वो तो क्या कर दिया आपने, स्क्रीन कर दिया ना. प्राइमरी टैंक में आने से पहले ये वाला प्रोसेस हो चुका है. ठीक है, दिस प्रोसेस इज परफॉर्म्ड बिफोर एंटरिंग इनटू दी प्राइमरी टैंक. ठीक है, तो प्राइमरी एफ्लुएंट के पास क्या होगा, फाइन ऑर्गेनिक मैटर होगा, क्योंकि जो लार्ज साइज ऑर्गेनिक मैटर था वो तो क्या हो गया, वो तो आपने पहले ही स्क्रीनिंग के थ्रू से निकाल लिया. अभी बचा क्या, फाइन ऑर्गेनिक मैटर. तो जो फ्लोट कर रहा है वो क्या है, फाइन ऑर्गेनिक मैटर है, और जो नीचे सेटल हो गया है दैट इज टर्म्ड एज द प्राइमरी स्लज. एंड प्राइमरी स्लज इज एक्चुअली द ग्रिट, दैट इज इट वुड बी सॉइल एंड पेबल्स. क्या होगा, सॉइल एंड पेबल्स होगा.
ठीक है, तो जिसको आप क्या करोगे, जो प्राइमरी स्लज है ना, उसके जो नीचे मैंने आउटलेट दिखाया है, उस आउटलेट के थ्रू आप बाहर निकाल लोगे, इस आउटलेट के थ्रू बाहर निकालोगे तो बाहर आ गया। बचा क्या? अब बचा है प्राइमरी एफ्लुएंट बचा है। नाउ दिस प्राइमरी एफ्लुएंट इज ट्रांसफर्ड टू द एरेशन टैंक। कहां पे ट्रांसफर किया जाता है? उन्हें उसे एरेशन टैंक में भेजा जाएगा। ठीक है, तो ये जो ग्रिट अवेलेबल है, दिस ग्रिट इज देन पास इनटू द एनारोबिक डाइजेस्टर। इसे कहां पास किया जाता है? दिस इज पास्ड इनटू एनारोबिक डाइजेस्टर, जहां पे इससे मैन्योर का फॉर्मेशन किया जाएगा। जहां पे इससे क्या किया जाएगा? मैन्योर का फॉर्मेशन किया जाएगा ग्रिट से। ठीक है, सो ग्रिट इज व्हाट? इट वुड कंटेन सैंड है, फाइन पार्टिकल्स है, वो सब यहां पे इंक्लूडेड हो गए। ठीक है, डन। सो नाउ दिस फाइन ऑर्गेनिक मैटर इज पास्ड इनटू द एरेशन टैंक। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर, द फर्स्ट पार्ट इज क्लियर। फिर से रिपीट करते हैं। द सीवेज is passed through the process of churning and shedding, and then it is passed through a filter or a screen which blocks the large size organic matter. This large size organic matter निकालने के बाद जो चीजें बच जाती है, that is passed into the primary settling tank. उसे फिर भेजा जाता है primary settling tank में। ठीक है, so primary settling tank में कुछ नहीं करना है, you need to keep the sewage as it is। तो क्या होगा? धीरे धीरे जो हैवी पार्टिकल्स होंगे वो नीचे की तरफ सेटल होने लगेंगे और जो लाइट पार्टिकल्स होंगे वो ऊपर रहेंगे। सो जो हैवी पार्टिकल्स है जो नीचे सेटल हो चुके हैं, दैट इज टर्म्ड एज द प्राइमरी स्लज एंड इट कंटेन्स व्हाट? इट कंटेन्स ग्रिट। ठीक है, दिस ग्रिट हैज टू बी पास टू द एनारोबिक डाइजेस्टर, जहां पे इसे कन्वर्ट किया जाता है इनटू अ मैन्योर। ठीक है, जो प्राइमरी एफ्लुएंट है जो ऊपर फ्लोट कर रहा है, इट कंटेन्स फाइन ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, नाउ दिस फाइन ऑर्गेनिक मैटर हैज टू बी पास्ड to the second tank which is known as the aeration tank. ठीक है, so I'll wrap this down. Okay, so secondary treatment जो है उसमें क्या किया जाएगा? तो फाइन ऑर्गेनिक मैटर इज ट्रीटेड ठीक है, and there are 3 ways through which we can treat the fine organic matter जो आपके प्राइमरी टैंक से पास ऑन होगा। सो फर्स्ट इज द एक्टिवेटेड स्लज मेथड। एक्टिवेटेड sludge method. Then there is second is the trickling filter method. And the third is the aeration tank or the oxidation tank method. ठीक है, so fine organic matter passing from the primary tank would undergo 3 techniques आप यूज कर सकते हो उसे, उसका मोड ब्रेक डाउन कर सकते हो, दैट इज एक्टिवेटेड स्लज मेथड, ट्रिकलिंग फिल्टर मेथड या फिर ऑक्सीडेशन टैंक मेथड। ठीक है, सो नाउ द फाइन ऑर्गेनिक मैटर जो था इट इज नाउ पास्ड इनटू द एरेशन टैंक, और इस एरेशन टैंक में देयर इज एडिशन ऑफ एक्टिवेटेड स्लज। ठीक है, एक्टिवेटेड स्लज क्या मैं बताता हूं। तो पहले फाइन ऑर्गेनिक मैटर इज
sent to the aeration tank. ठीक है, और एरेशन टैंक में एक और चीज ऐड की जाती है, दैट इज द एक्टिवेटेड स्लज, एंड द एक्टिवेटेड स्लज कम्स फ्रॉम द सेकेंडरी सेटलिंग टैंक. ठीक है, व्हाट इज एक्टिवेटेड स्लज देख लेते हैं. प्लस activated sludge. Now what is this activated sludge? So this activated sludge is a mixture of aerobic and heterotrophic microorganism. It is a mixture of aerobic and heterotrophic microorganism. ठीक है, तो इफ इट इज आस्क्ड व्हाट इज एक्टिवेटेड स्लज, तो आप क्या बोलोगे? इट्स अ मिक्सचर ऑफ एरोबिक एंड हेटेरोट्रॉफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो यहाँ पे जो एरोबिक और हेटेरोट्रॉफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जब याले टैंक के अंदर फाइन ऑर्गेनिक मैटर आ जाएगा, है ना, बिकॉज द प्राइमरी एफ्लुएंट, दिस इज फाइन ऑर्गेनिक मैटर इज प्राइमरी एफ्लुएंट. तो जब प्राइमरी एफ्लुएंट एंटर्स द एरेशन टैंक, तो एक बात तो यहाँ पे आप एयर पंप करोगे, ऑक्सीजन पंप करोगे इस टैंक के अंदर, प्लस देयर इज प्रेजेंस ऑफ व्हाट, देयर इज प्रेजेंस ऑफ द एक्टिवेटेड स्लज. देयर इज प्रेजेंस ऑफ द एक्टिवेटेड स्लज, दैट इज द माइक्रोऑर्गेनिजम्स, एरोबिक and heterotrophic microorganisms. So these microorganisms are going to feed on the fine organic matter that is present in the primary effluent. ठीक है, आपने यहाँ पे किसको माइक्रोऑर्गेनिजम्स को रिलीज कर दिया. ये माइक्रोऑर्गेनिजम्स क्या करने वाले हैं? दे आर गोइंग टू फीड ऑन द ऑर्गेनिक फाइन ऑर्गेनिक मैटर, क्योंकि जो लार्ज साइज ऑर्गेनिक मैटर था वो तो आपने निकाल दिया स्क्रीनिंग मेथड के थ्रू. अभी जो छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स है ऑर्गेनिक वेस्ट के, ऑर्गेनिक मैटर के, उसको ये माइक्रोब्स क्या करेंगे? ये माइक्रोब्स उसके ऊपर फीड करेंगे, दे गोइंग टू फीड ऑन इट. ठीक है, सो नाउ व्हिच माइक्रोब्स आर प्रेजेंट इन द एक्टिवेटेड स्लज? कौन से माइक्रोब्स प्रेजेंट है? तो देयर इज प्रेजेंस ऑफ फंगस, फंगस प्रेजेंट है. ठीक है, वी हैव यीस्ट प्रेजेंट है यहाँ पे एक्टिवेटेड स्लज में. देयर इज प्रेजेंस ऑफ यीस्ट, देयर इज प्रेजेंस ऑफ पेनिसिलियम, पेनिसिलियम नोटाटम. ठीक है, एंड देयर इज प्रेजेंस ऑफ जियोट्रिकम. ठीक है, सो ये फंगस प्रेजेंट है किसमें? एक्टिवेटेड स्लज में. देयर इज ऑल्सो प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया भी प्रेजेंट है. दिस आर ऑल पार्ट ऑफ व्हाट? एक्टिवेटेड स्लज. कौन कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट है? सो देयर इज प्रेजेंस ऑफ इकोलाई, एंटेरोबैक्टर, इकोलाई है, there is enterobacter, there is acromobacter, there is Flavobacterium, I put it here, Flavobacterium. ठीक है, then there is also presence of Pseudomonas and Micrococcus. यहाँ लिख लेते हैं Pseudomonas and
Micrococcus. So there are a lot of bacteria. So E. coli है, Enterobacter है, Achromobacter है, Micrococcus है, Pseudomonas है, Flavobacterium है. फंगस में क्या yeast, Penicillium and Geotrichum है. ठीक है, और कोई चीज प्रेजेंट है तो यस देयर इज आल्सो प्रेजेंस ऑफ प्रोटोजोआ. ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. द थर्ड कैटेगरी इज प्रोटोजोआ. यहाँ लिख देता हूँ. So there are three components present in the activated sludge. We have the fungus, we have the bacteria and we have the protozoa. ठीक है, so यहाँ पे मैंने नाम लिख दिया. फंगस में yeast, penicillium, geotrichum. बैक्टीरिया में E. coli, Enterobacter, Achromobacter and Flavobacterium, Pseudomonas and Micrococcus and there is also the protozoa. तो ये सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है कहाँ पे? एक्टिवेटेड स्लज में. और ये क्या करने वाले? दे आर गोइंग टू फीड ऑन दी फाइन ऑर्गेनिक पार्टिकल्स. ठीक है, यहाँ पे मैंने फाइन ऑर्गेनिक मैटर लिखा है. मैं आई कैन ऑल्सो पुट इट एज द प्राइमरी एफ्लुएंट. प्राइमरी एफ्लुएंट भी लिख सकते हैं. ठीक है, नाउ यहाँ पे एक टर्म आता है फ्लॉक्स. कौन सा टर्म आता है? फ्लॉक्स. ठीक है, तो मैं ये रब करता हूँ. मैं फ्लॉक्स लिखता हूँ. व्हाट आर फ्लॉक्स? एंड विल डिस्कस वन मोर थिंग दैट इज BOD, दैट इज द बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड. सो अभी आपको क्लियर हो गया ना कि एरेशन टैंक में क्या होगा? देयर इज लॉट ऑफ ऑक्सीजन ऑल्सो. O2 को पंप किया जाएगा, लॉट ऑफ ऑक्सीजन. Okay, and a lot of microorganisms and the microorganisms are feeding on the fine organic matter. ठीक है, okay, so as I mentioned there is presence of bacteria and there is presence of fungus. तो जो bacteria होते हैं what they do is they get associated with the fungus and they form a mash like structure that is known as the flock. That is masses of bacteria associated with masses of bacteria associated with fungus filaments and forming a mesh like structure, forming a mesh like structure. ठीक है, so that is termed as the flocks. क्योंकि बैक्टीरिया भी अवेलेबल है, फंगस भी अवेलेबल है, तो वो दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे के साथ एसोसिएट हो जाएंगे एंड दे वुड फॉर्म व्हाट? दे वुड फॉर्म अ फ्लॉक. दैट इज masses of bacteria associated with the fungus filaments and forming a mesh like structure. ठीक है, so now one more thing जो मैं बताया, BOD. So as the bacteria, as the microorganisms are feeding on the organic matter present in this primary effluent that is present in the aeration tank, होगा क्या? The requirement of the oxygen by this microorganism is going to increase. They would require oxygen to perform the aerobic respiration. ठीक है, तो जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक वेस्ट होगा इसके अंदर उतना ज़्यादा क्या होने लगेगा? उतना ज़्यादा ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होगा. यहाँ लिखेंगे BOD के बारे में, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के बारे में. अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड. ठीक है, एक सिंपल सी बात मैं सिंपल वर्ड्स में आपको बोल देता हूं कि जितना फूड प्रेजेंट है, जितना ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है, उतना ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए. किसको? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, सो दैट दे कैन ब्रेक डाउन दैट ऑर्गेनिक मैटर. सो हायर द ऑर्गेनिक वेस्ट इन द एफ्लुएंट, that means higher the oxygen is required.
that means the value of BOD is going to be higher. ठीक है, so the value of BOD depends or is directly proportional to the content of organic waste in the effluent. More the organic waste, more the biological oxygen demand. So let's define it. So it is the amount of oxygen in mg for 5 days. Amount of oxygen in milligrams for 5 days in 1 liter of water, in 1 liter of water at 20 degrees Celsius, at 20 degrees Celsius, required by microorganism, required by microorganisms, ठीक है, to decompose organic waste. This is the definition of BOD. मैंने simple words में तो आपको बता ही दिया. So that is the amount of oxygen in milligram, ठीक है, for 5 days in 1 liter of water at 20 degrees Celsius, required by microorganisms to decompose the organic waste. That is termed as the biological oxygen demand. ठीक है, now जितना ज्यादा ऑर्गेनिक वेस्ट है, I'll write this down. More the organic waste, more the organic waste, ठीक है, that means more oxygen required by microorganisms to decompose or digest it, to decompose it, organic matter, to decompose the organic matter. ठीक है, so more the organic waste, more oxygen required by the microorganism to decompose organic matter. That means if the value of biological oxygen demand decreases, that means what? The amount of organic waste also decreases. That means the water is becoming less polluted. उसमें से organic waste क्या हो रहे, कम हो रहे हैं. ठीक है, तो I can put it as, लिखते हैं BOD is directly proportional to organic matter. Is directly proportional to the organic matter. ठीक है, तो यहाँ पे ये भी सिंपल उसमें लिख सकते हैं कि यार अगर BOD की वैल्यू ज्यादा है, दैट मीन्स एफ्लुएंट के अंदर ऑर्गेनिक मैटर की वैल्यू भी ज्यादा है, और जैसे जैसे ऑर्गेनिक मैटर की वैल्यू कम होती जाएगी या ऑर्गेनिक मैटर का कंटेंट कम होता जाएगा, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करेंगे, फीड करेंगे, डिकम्पोज करेंगे उसके ऊपर, तो ऑर्गेनिक मैटर का जैसे जैसे प्रोपोर्शन कम होता जाएगा, BOD की वैल्यू भी कम होती जाएगी. ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात. ठीक है, सो अर्लियर जब आपने एफ्लुएंट को यहाँ पे पास किया, उस टाइम पे BOD की वैल्यू काफी ज्यादा होगी, क्योंकि उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर काफी ज्यादा है. बट जैसे जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसके ऊपर फीड करेंगे, तो क्या होगा,
the organic matter is going to decrease and that would lower the value of BOD as well. ठीक है? So once the value of BOD is lowered, आप क्या करते हो, ये जो है आपका effluent, इसको पास कर दोगे कहां पे? This is going to be passed into the secondary settling tank. So this was the primary effluent. यहाँ पे जो बनेगा, okay, that is going to be the secondary effluent. ठीक है? तो प्राइमरी एफ्लुएंट से आपने क्या बनाया, सेकेंडरी एफ्लुएंट बनाया. अब प्राइमरी एफ्लुएंट के अंदर देयर वाज ऑर्गेनिक मैटर इन हायर अमाउंट, बट इन दी सेकेंडरी एफ्लुएंट द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज गोइंग टू बी वेरी लो बिकॉज इट हैव बीन ट्रीटेड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ठीक है? तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहां से है? एक्टिवेटेड स्लज से है. एक्टिवेटेड स्लज यहां से आता था, आपने बात करी थी. ठीक है, तो आगे चलते हैं. नाउ अब बात करेंगे अपन टर्शियरी ट्रीटमेंट की, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर the effluent, if it is not to be used for any of the domestic purposes, it can be directly released into the water body. There is no requirement of the the third step. ठीक है, थर्ड स्टेप की रिक्वायरमेंट नहीं है. ठीक है, you do not need to settle it into the secondary settling tank. तो मैं लिख देते हैं, if not required for domestic purpose, घर में यूज करने के लिए नहीं चाहिए, if not required for domestic purpose, the secondary effluent, this is going to be the secondary effluent after the treatment. The secondary effluent can be released in water bodies. ठीक है, because it's going to be less harmful. So if not required for domestic purposes, the secondary effluent can be released in the water bodies. But if it is required for domestic purposes, if required for domestic purpose, further treatment or the tertiary treatment is required. ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है. आप यहाँ पे जो सेकेंडरी एफ्लुएंट बना उसको सीधा रिलीज कर सकते हो अगर आपको डोमेस्टिक पर्पस में यूज नहीं करना है. बट इफ इट इज टू बी यूज फॉर डोमेस्टिक पर्पस, द टर्शियरी ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड. ठीक है, सो आई विल स्टार्ट विद द टर्शियरी ट्रीटमेंट. टर्शियरी ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं. सो टर्शियरी ट्रीटमेंट इज ओनली फॉर द डोमेस्टिक पर्पस में अगर आप यूज करने वाले हो इस चीज को तभी. तो अब टर्शियरी ट्रीटमेंट में क्या किया जाएगा? So tertiary treatment में it is going to be treated or it is going to be removal of pathogenic microorganisms. पैथोजेनिक आपको पता है, पैथोजेनिक मतलब जो डिसीज कॉज करते हैं. रिमूवल ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. देयर इज ऑल्सो रिमूवल ऑफ
नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, रिमूवल ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल मैटर, क्योंकि जो डिग्रेडेबल मैटर है वो तो बैक्टीरिया ने क्या कर दिया, खत्म कर दिया, जो बच गया वो तो नॉन बायोडिग्रेडेबल मैटर ही होगा। ठीक है, जहां पे एक एग्जांपल मैं लिख देता हूं DDT। ठीक है, और क्या निकाला जाएगा, सो देयर इज रिमूवल ऑफ फॉस्फेट एंड नाइट्रेट, ऑफ फॉस्फेट एंड नाइट्रेट। ठीक है, एंड द थर्ड इज रिमूवल ऑफ टर्बिडिटी ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ रिमूवल ऑफ टर्बिडिटी ऑफ वाटर। तो ये सब चीजें करी जाएगी कहां पे, इन दी टर्शियरी ट्रीटमेंट, बिकॉज वी आर गोइंग टू यूजिंग इट फॉर द डोमेस्टिक पर्पस। ठीक है, क्लियर है। नाउ इनिशियली क्या किया जाता है, जब एफ्लुएंट यहाँ पे आएगा ना, मैं इस चीज को रब करता हूँ, अब जब सेकेंडरी एफ्लुएंट यहाँ पे आता है तो फर्स्ट इट इज अलाउड टू सेटल। फर्स्ट क्या किया जाता है, फर्स्ट when the primary secondary effluent reaches the secondary settling tank, this is the secondary settling tank, this is the addition tank, this is the primary settling tank। तो जब आपका secondary effluent आता है in the secondary settling tank तो it is allowed to settle। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी जब उसको सेटल करने देंगे तो क्या होगा, जो हैवी पार्टिकल्स है वो नीचे की तरफ डिपॉजिट हो जाएंगे और जो वाटर है which is now less polluted वो फ्लोट करेगा। ठीक है, अब ये जो चीज यहाँ पे जो बना था, इट वॉज टर्म्ड एज प्राइमरी स्लज। ठीक है, दिस इज नोन एज एक्टिवेटेड स्लज। इसे क्या कहा जाता है, एक्टिवेटेड स्लज। ठीक है, एंड दिस एक्टिवेटेड स्लज वुड कंटेन व्हाट, इट वुड कंटेन द बैक्टीरिया, इट वुड कंटेन द फंगस, इट वुड कंटेन द यीस्ट। ठीक है, वहां पे मैं लिख देता हूं कंटेन्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, या फिर कंटेन्स फ्लॉक्स भी आप लिख सकते हो, कंटेन्स फ्लॉक्स। ठीक है, और आप क्या करते हो, जो मैंने बात बताई थी, इसी को आपने पंप किया था, किसमें पंप किया था आपने, इट वॉज पंप्ड इन दी एरेशन टैंक। अपन लिखा था ना कि जो प्राइमरी एफ्लुएंट प्लस दी एक्टिवेटेड स्लज, तो ये एक्टिवेटेड स्लज यहां से आया। ठीक है, सो मेजॉरिटी ऑफ दी स्लज यहां पे दिखा देते अपन, मेजॉरिटी ऑफ दिस स्लज जो है उसको आप निकाल दोगे, इट इज गोइंग टू बी टेकन आउट, सम ऑफ इट इज गोइंग टू बी यूज्ड एज दी activated sludge is going to be used as an inoculum। ठीक है, inoculum is the small amount of organisms which are going to be used to activate a process। ठीक है, तो ये मैंने क्या लिखा है कि टर्शियरी ट्रीटमेंट में ये चीज करी जाएगी। ठीक है, अब मैं लिखता हूं सेकेंडरी एफ्लुएंट, secondary effluent when reaches secondary effluent when reaches secondary settling tank from, कहाँ से आ रहा है, from the
एरेशन टैंक। टर्शियरी ट्रीटमेंट क्या होगा कि जो सेकेंडरी एफ्लुएंट व्हेन रीचेस सेकेंडरी सेटलिंग टैंक फ्रॉम द एरेशन टैंक, इट इज अलाउड टू सेटल, इट इज अलाउड टू सेटल। ठीक है, तो जब उसे सेटल करेंगे तो क्या होगा, the bottom of tank will contain activated sludge. The bottom of the tank would contain the activated sludge. ठीक है, some amount of activated sludge is pumped back. कहाँ पे पंप बैक कर रहे हैं? पंप बैक टू दी aeration tank. It is pumped back to the aeration tank. ठीक है, and majority of activated sludge is removed. ठीक है, majority of it is going to be removed. ठीक है, थोड़ा सा पंप किया जाएगा कहाँ पे, बैक टू दी एरेशन टैंक। तो यहाँ पे जो एक्टिवेटेड स्लज है, it is used as the starters inoculum. It is used as the starters inoculum. ठीक है, जैसे दही बनाते हैं तो दही बनाने के लिए क्या चाहिए, आप स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड रखते हो, ठीक है, और उसमें आप दूध ऐड कर देते हो। तो जो स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड में जो बैक्टीरिया है वो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और जो दूध है उसको दही में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो जो स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड आपने रखा, या फिर आप दूध के अंदर 1 स्पून कर्ड का ऐड कर दोगे, तो जो 1 स्पून आपने कर्ड का ऐड किया उसके अंदर जो बैक्टीरियाज होंगे वो क्या करेंगे, दे वुड मल्टीप्लाई एंड कन्वर्ट द मिल्क इनटू दी कर्ड। तो दैट 1 स्पून ऑफ बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस इज कंसिडर्ड एज द स्टार्टर्स इनोक्युलम। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपने क्या किया, मेजॉरिटी ऑफ दी एक्टिवेटेड स्लज को तो आपने रिमूव कर दिया, बट स्मॉल अमाउंट इज पम्प्ड बैक टू द एरेशन टैंक। और जब एरेशन टैंक में फिर से जब प्राइमरी एफ्लुएंट आएगा तो ये जो एक्टिवेटेड स्लज है, स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्टिवेटेड स्लज क्या करेगा, उसके अंदर के माइक्रो ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई करेंगे और पूरा ये भर जाएगा। ठीक है, ये जो मैंने दिखाया, दिस इज द स्टरर, जो क्या करेगा, पूरे एफ्लुएंट को मिक्स करने का काम करेगा। दिस इज गोइंग टू रोटेट, ओके, दिस इज गोइंग टू बी हेल्पफुल इन एजिटेशन ऑफ द प्राइमरी effluent. ठीक है, so this is clear. So secondary effluent when reaches the secondary settling tank, let's underline it. Effluent when reaches the secondary settling tank from aeration tank, it is allowed to settle. It is allowed to settle. The bottom of the tank will contain activated sludge. Some amount of activated sludge is pumped back to the aeration tank, and majority of the activated sludge is रिमूव। ठीक है, तो ये जो सेटल हुआ था उसको पंप किया, थोड़ा आपने यहाँ पे, बाकी का आपने रिमूव कर दिया, और ये आपका क्या बचा हुआ है, ये आपका सेकेंडरी एफ्लुएंट बचा हुआ है जिसको आप ट्रीट कर रहे हो। क्यों ट्रीट करना है, क्योंकि आपको इसमें से पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को निकालना है, इसमें से आपको डीडीटी निकालना है, ओके, जो चीज़ें बायोडिग्रेडेबल नहीं उन चीज़ों को निकालना है। ठीक है, तो किस चीज़ से सेकेंडरी एफ्लुएंट को ट्रीट किया जाएगा, तो एक तो आपने सेटल कर दिया, उसके बाद क्या करेंगे, तो जो सेकेंडरी एफ्लुएंट है, मैंने बोला ना क्या क्या चीजें निकालनी है, तो सेकेंडरी एफ्लुएंट इज ट्रीटेड विथ यूवी रेस, is आप यूवी रेस का ट्रीटमेंट दे सकते हो। ठीक है, आप ओजोन यूज कर सकते हो। ठीक है, आप यूज कर सकते हो यहाँ पे जिरकोनियम,
zirconium. ठीक है, zirconium being negatively charged, I'm sorry, zirconium being positively charged attracts negatively charged, क्या चीजें थी आपको नेगेटिवली चार्ज निकालनी थी? ओके, देयर वाज फॉस्फेट, नेगेटिवली चार्ज्ड फॉस्फेट एंड नेगेटिवली चार्ज्ड नाइट्रेट. ठीक है, तो जिरकोनियम जो है बीइंग नेगेटिवली चार्ज्ड, ये कंपोनेंट्स को निकाल देगा. फिर we can use the chlorine gas for the removal of ammonia. Chlorine gas for removal of ammonia. ठीक है, the secondary effluent is also treated by reverse osmosis technique. Reverse osmosis technique is also performed. ठीक है, and it is also treated with alum. It is also treated with alum. ठीक है, reverse osmosis technique is performed to remove the salts. This is for removal of salts. ठीक है, सिंपल एंड इजी. तो टर्शियरी ट्रीटमेंट में आपको जो जो कंपोनेंट्स निकालने थे फ्रॉम दी सेकेंडरी एफ्लुएंट, उसके लिए आप क्या क्या चीजें यूज कर रहे हो. ठीक है, तो उसके लिए आप यूज कर रहे हो, एक तो यूवी रेज को आप यूज कर रहे हो, यूवी रेज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारने के लिए, ओजोन टू किल दी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. जिरकोनियम आप यूज कर रहे हो क्योंकि जिरकोनियम पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो वो क्या करता है, वो नेगेटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज होने की वजह से इट अट्रैक्ट्स नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स लाइक फॉस्फेट एंड नाइट्रेट. तो फॉस्फेट और नाइट्रेट निकल जाएंगे. रिवर्स ऑस्मोसिस मेथड आप यूज करोगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जो सॉल्ट्स है वो सॉल्ट्स निकल जाएंगे. आप क्लोरीन गैस यूज करोगे फॉर द रिमूवल ऑफ अमोनिया, और आप एलम भी यूज कर सकते हो. ठीक है, टू फिल्टर आउट दी वाटर. ठीक है, तो दिस इज गोइंग टू बी हैपनिंग विद द सेकेंडरी एफ्लुएंट. कहां पे, इन दी सेकेंडरी सेटलिंग टैंक, वंस द स्लज, एक्टिवेटेड स्लज हैज बीन रिमूव्ड. ठीक है, सिंपल एंड इजी. So now what we'll do is we'll just put a difference, a small difference between the primary treatment and secondary treatment. ठीक है, प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या हो वो एक बार देख लेते हैं. आई होप दिस पोर्शन इज क्लियर. इतना आपको समझ में आ गया कि आपने क्या क्या चीजें यूज करी है, सो दैट नाउ दी वाटर कैन बी यूज्ड फॉर द डोमेस्टिक पर्पस. ठीक है, तो ये उसके अंदर पैथोजेंस नहीं है, उसके अंदर हार्मफुल केमिकल्स नहीं है. So let's put a difference between PT and ST, that is secondary treatment and primary treatment. So primary treatment में क्या था, it was a physical process. अब आपको पता है कि चल गया होगा. Physical process, this is going to be biological process. ठीक है, then large organic matter is removed. In the primary treatment, large organic matter is removed. Large organic matter
and grit is removed. और बायोलॉजिकल प्रोसेस में क्या है, फाइन ऑर्गेनिक मैटर इज रिमूव्ड, है ना. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फीड करते थे, फाइन ऑर्गेनिक मैटर इज रिमूव्ड. ठीक है. सेकेंडरी ट्रीटमेंट में आपने एरेशन टैग में किया था, तो यहाँ पे देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ एरेशन इज रिक्वायर्ड. ये तो मैं लिखूंगा एरेशन इज रिक्वायर्ड, और यहाँ पे देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एरेशन. ठीक है. सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी ट्रीटमेंट एंड द सेकेंडरी ट्रीटमेंट. ठीक है. सो आई होप दिस इज क्लियर, बट मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ. ठीक है. तो सीवेज को आपने जब प्राइमरी सेटलिंग टैंक के अंदर डाला, उससे पहले आपने क्या किया, उसका चर्निंग किया, उसको शेडिंग किया. ठीक है. फिर उसको स्क्रीनिंग के थ्रू पास किया, तो उसमें क्या हो गया, जो बड़े पार्टिकल्स थे, बड़े ऑर्गेनिक पार्टिकल्स थे, वो क्या हो गया, वहीं पे ब्लॉक हो गए. ठीक है. फिर आपने कहाँ पे रिलीज कर दिया, वो जो एफ्लुएंट था उसको रिलीज कर दिया यारे टैंक में, सेटलिंग टैंक में. अब आपने उसको सेटल होने दिया, तो जब आप सेटल होने दोगे तो जो हैवी पार्टिकल्स वो नीचे सेटल हो जाएगी. दिस हैवी पार्टिकल्स दे फॉर्म द प्राइमरी स्लज, और जो ऊपर की तरफ फ्लोट करेगा दैट इज गोइंग टू बी कंसीडर्ड एज प्राइमरी एफ्लुएंट. द प्राइमरी एफ्लुएंट वुड कंटेन व्हाट, द फाइन ऑर्गेनिक मैटर. ठीक है. नाउ दिस प्राइमरी एफ्लुएंट इज पास टू द एरेशन टैंक. ठीक है. एरेशन टैंक में इट इज ट्रीटेड विद द activated sludge. This activated sludge contains various microorganisms that feed on the fine organic matter. ठीक है. And as they feed on the fine organic matter, they require oxygen to perform the aerobic respiration. So the demand of the BOD, the biological oxygen demand increases. ठीक है. But slowly and gradually the BOD, the biological oxygen demand decreases as the amount of organic matter is reduced, because the microorganisms feed on them and they decompose it or they degrade it. ठीक है. Now once the BOD has been decreased, the secondary effluent is passed to the third tank, that is the secondary settling tank, and वहाँ पे the secondary effluent is allowed to settle. So when it settles, what happens is, यहाँ पे भी नीचे की तरफ this for the heavy particles they settle down, and this time the heavy components are going to be the activated sludge which contains microorganism. Majority of the sludge is going to be removed. Some of the sludge is going to be pumped back to the aeration tank, जहाँ पे it would work as a starter's inoculum. ठीक है. And the secondary effluent can be taken out from the STP and can be drained into the water bodies if it is not to be used for domestic purpose. But if it is to be used for a domestic purpose, it is to be further treated, that is the tertiary treatment. So tertiary treatment में what we do is we remove a lot of stuff out of the secondary effluent. There is removal of non biodegradable material, there is removal of nitrate, potassium, harmful microorganism. Okay. And we use a lot of use a lot of material to take out this harmful components. We use UV rays, we use ozone, there is use of zirconium, there is use of chlorine gas, there is use of alum. Okay. So that we can purify the water as much so that it can be used for domestic purpose. ठीक है. So आज के लेक्चर में we have talked about the STP, the sewage treatment plant. ठीक है. I hope आप इस लेक्चर को देखो and the things are much more clear to you. ठीक है. तो वीडियो देखने के बाद अच्छे से डायग्राम बना देना, अच्छे से पॉइंट्स लिख देना, अच्छे से नोट्स बना देना, और नोट्स का व्हाट्सएप मुझे भेज देना. और कोई भी डाउट है रिगार्डिंग दिस वीडियो, ड्रॉप मी अ मैसेज, आई विल गिव यू कॉल और आई विल सॉल्व इट थ्रू व्हाट्सएप. ठीक है. थैंक यू सो मच. बाय बाय.